Everyone, welcome to Pratham Test Prep. My name is Ashish Bhargav. Welcome to another episode of Daily News Analysis. So, first of all, happy Dussehra to each and everyone, and I hope that you guys are doing well. And as we know that newspaper analysis is very important in terms of your exam is concerned, because most of the current affairs questions that you would be able to solve with the help of newspaper. So newspaper gives an idea like what things that you need to prepare and आपको इसमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, right? So चलो, and if I am audible and visible to each and everyone, please let me know. And one more thing is, if you are new in this channel, please subscribe our channel and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham Test Prep mentors. And in newspaper analysis, what exactly we do, we discuss about national news, international news, economy-based news, sports-based news, science and tech, personal news, summits and conference, and miscellaneous. Apart from that, we also discuss about Supreme Court verdict, any amendments, any bills, which is very important for your exam perspective, especially for the if you are preparing for the law entrance exam. And here's the quote of the day, that nobody can go back and start a new beginning, but anyone can start today and make a new ending. And as I told you, not each and every fact of the newspaper is important. तो जो भी आपके important articles हैं, that we will discuss in the news analysis. And as you know कि ये हमारा होता है questions of the day, which means that कि हम यहाँ पे YouTube session के बाद will discuss about 5 questions and they are directly from the Hindu or Indian Express. And quick tips जो हम discuss करेंगे with the help of mnemonics that will help students to retrieve information using the memory techniques. And once again, happy Dussehra, that let's celebrate on an auspicious day to begin a new things in life. चलिए, so यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसरो के बारे में. So at 10 a.m. on October 21st, Indian Space Research Organization that commenced the first uncrewed deploymental flight at its Gangayaan, that human crew escape system. Crew escape system. So in short, that CES system to an altitude of So sorry for the inconvenience, my friend. So there is CES system जो होता है that are detached itself a crew model that from the rocket, and it's climbed to almost around 17 km. So in response to a command that CES that separated from the crew model, that leaving the module to recreate itself before dropping to a Bay of Bengal. So अगर आप सेफ्टी देखें यहाँ पे सेफ्टी टेस्ट ऑफ गंगायान, दैट टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट डेमोन्स्ट्रेशन मिशन प्रोफाइल, यहाँ पे आपको एसेंट फेज दिखेगा, यहाँ पे आपको HEM दिखेगा, हाई ऑल्टीट्यूड स्कीम मोटर, एंड यहाँ आपको CES फेज दिखेगा, फिर आपका यहाँ पे कोस्टिंग एंड बाकी यहाँ पे आपको क्रू मॉडल दिखेगी. सो बेसिकली जो आपका गंगायान है वो भी आपको इसरो ने लॉन्च किया है. द फ्यू इन्फॉर्मेशन दैट यू शुड नो अबाउट द इसरो इज़ कि यहाँ पे नेक्स्ट वन इज़ वियना कन्वेंशन. सो अभी आप देखोगे इस आर्टिकल में बेसिकली जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर, सो वियना कन्वेंशन एक डिप्लोमेटिक रिलेशन था इन द ईयर ऑफ 1961 में. इज़ अ काइंड ऑफ यूनाइटेड नेशंस की ये ट्रीटी थी
सॉरी इस आर्टिकल में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि लाइक इफ़ यू टॉक अबाउट इसरो, तो ये आपका इसरो की इस्टेब्लिशमेंट डेट आपको याद रखनी है, दैट इज़ 15th of August 1958, 15th of August 1958। ये हमारी सॉरी 1969, 58 में आपका नासा इस्टेब्लिश होती है एंड इसरो इस्टेब्लिश होती है आपकी 15th of August 1969। दिस ईयर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड। और आपको एक चीज़ देखनी है कि इसमें हेडक्वार्टर्स जो है आपका वो है आपका बेंगलुरु। सो दीज काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट यू शुड कीप इन माइंड while you are reading such kind of articles. Moving further, here we talk about Vienna Convention. So Vienna Convention, my friend, 1961 में होती है, that United Nations की तरफ से। That treaty has set common principles and terms on how countries must treat each other diplomatic representatives in order to ensure friendly relation and maintain proper communication channels between countries. So आपकी अगर बात करें यहाँ पे diplomatic communities की, diplomatic immunities that flows from two conventions popularly called the Vienna Convention, the 1961 Convention and the Convention of Consular Relation, and ये हमारा साइन हुआ था 1963 में। So 1961 Convention says Article 29 जिसमें mention है the person of a diplomatic agent that shall be inviolable, he shall not be liable to any form of arrest or detention, and the receiving state shall treat him with due respect and shall take all appropriate steps to prevent any attack on his persons, that freedom of or dignity. So in short, today 193 country has ratified the convention, that meaning the agreed should be legally binding on them. So Vienna Convention के बारे में अगर हम देखें यहाँ पे, तो ये 14th April 1961 को by the United Nations Conference on Diplomatic Intercourse में साइन हुआ था, and immunities that held in Vienna, Austria, and India has ratified this convention, and it came into force on April 24, 1964, and it nearly universally ratified with Palau and South Sudan being the exception. So it sets out the special rules, privilege and immunities which enables diplomatic missions to act without fear of coercion or harassment through enforcement of local laws and communicate securely with their sending government. So a receiving state refers to the host nation where a diplomatic mission is located. Next है आपका restoring the ecological health of the Himalayas. So the environmental devastation that caused the Himalaya state of like आपका Himachal Pradesh, आपका Uttarakhand and Sikkim has reinvigorated the debate on carrying capacity of the region. Supreme Court of India, in response to petition filed by retired Indian Police Service officer, has asked the Union government to suggest a way forward regarding the carrying capacity of Indian Himalayas region IHR. So, what are the carrying capacity of a region? So, in technical terms अगर हम देखें इसे, तो carrying capacity of a region is based on the maximum population size that our ecosystem or environment can sustainably support over a specific period without causing significant degradation or harm to its natural resources and overall health. So, it is crucial in understanding and managing the balance between human activities and the preservation of natural ecosystems that to ensure long-term sustainability. So, there have been initiatives by the Union government regarding overall development in IHR, Indian Himalaya region, and उसके लिए जो था हमारा 2010 में लिया Indian Himalayas Climate Adaptation, that is IHCAB। 2010 में इसके लिए गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव थी वो था हमारा Indian Himalayas Climate Adaptation Program that secure Himalayan project, and the जो recent guidelines हैं carrying capacity in the IHR, that on January 30th, 2020, there was a reminder by the Ministry of Environment and Forest on May 19, 2023, asking all the states that if such a study had not been undertaken, then a state should submit an action plan that carrying capacity at the earliest. So, the emphasis should be the sustainable populations on the Himalaya state, and the focus on current inquiry which is offering should be carrying capacity for the sustainable population for the different Himalayan state. So, there is a wider and longer term need for
assessing the overall sustainable capacity of the environment of the whole state, which includes जिसमें कि आपका biological species, food habitat, water including ecology and agriculture. यहाँ पे आप देखो इस लास्ट आर्टिकल में why did Supreme Court not allow same-sex marriage? What were the petitions seeking? Why did the court not allow the Special Marriage Act to be used for queer couple to get married? And will the legislature be open to enacting a law to make same-sex marriage legal? The similar article that we had discussed in the last YouTube analysis. So you should keep an eye on that. What is the debate is going on? So the petition has sought the ruling which is Special Marriage Act 1954. So in our country, the government wanted to establish the UCC because Muslims have different laws, Sikh have different law, Christians have different law. So UCC which means Uniform Civil Code. And Uniform Civil Code से जो है my friends, ये आपका आर्टिकल 44 of the Indian Constitution. So it is not legally bound. And Goa that became the only state in our country जहाँ पे आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड है. But irrespective of any religion, you are bound to follow the rules. That is for equal for all. So यहाँ पे जो है आपका Special Marriage Act that we can say violated Article 14 of the Constitution, Article 15 of the Constitution, Article 14th, Article 15th, Article 19th, and Article 21, which is very good morning, Kunal. Happy Dashara to you. So 14th, 15th, 19th और 21 इसका वायलेशन है. As we know that ये जो सेम सेक्स मैरिज की बात हो रही है इसमें, ये इस वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल. क्यों? अब देखो आर्टिकल 21 में जो आपकी सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी उसमें ये चीज़ मेंशन करती कि राइट टू मैरी ऑफ ओन चॉइस इज समबडी फंडामेंटल राइट्स. सो यहाँ पे इस वायलेशन ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो ये जो हमारा राइट टू मैरी है, राइट टू मैरी ऑफ ओन चॉइस, ये हमारा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इट इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, राइट. So it's obvious that we can say that you should know about such nitty-gritty of the things कि आपको इसमें कोर्ट में क्या कंसीडर करना है. सबसे पहले आपको देखो स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है. सो LGBTQ का ये कहना है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया. माय फ्रेंड्स, कोर्ट का ये कहना है कि आप लीगली रह सकते हो साथ में, राइट, बट आप यहाँ पे यू आर नॉट एबल टू गेट मैरिड टू ईच अदर. क्यों? क्योंकि कोर्ट का ये कहना है कि शादी के लिए हमारे इंडिया में इट शुड बी अ बायोलॉजिकल मैन एंड बायोलॉजिकल वुमेन, राइट. बिकॉज मोस्ट ऑफ द सोसाइटी में आप देखें कि शादी के बाद हम बेबी की एक्सपेक्टेशन रखते हैं एंड कोर्ट का ये कहना है कि हमारी जो इंडिया की सोसाइटी है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, राइट. दिस इज सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट है उसके अकॉर्डिंग. सो इसमें माइनॉरिटी ओपिनियन, मेजॉरिटी ओपिनियन DY चंद्रचूड़ जो हमारे अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके भी इसमें उन्होंने ये बात कही. तो इन शॉर्ट अगर आप देखें स्पेशल मैरिज एक्ट को अमेंड करने की बात हो रही है. तो फर्स्ट थिंग यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि ये जो आपका JI इंजस्टिस कॉल है जिसमें माइनॉरिटी ओपिनियन दी थी उन्होंने, उसमें बात की थी कि फेवर्ड एक्सटेंशन ऑफ सिविल यूनियन टू सेम सेक्स कपल. अब सेम सेक्स कपल के लिए सिविल यूनियन की बात हो रही है. ये क्या है माय फ्रेंड्स? See, civil union that refers to legal status that allow same-sex couples specific rights and responsibilities that are normally conferred upon married couple. Although a civil union resembles a marriage, it does not have a same recognition in personal laws as in marriage. ये हमारा that is the main bone of contention. अब ये देखते हैं कि legality क्या है. Legality की बात करें अभी कोर्ट का डिसीजन है तो right to marry is not expressly recognized either as a fundamental or constitutional right under the Indian Constitution but a statutory right. बट अगर सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट को अगर आप देखें वहाँ पर मेंशन राइट टू मैरी इज आवर फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. So though marriage is regulated through various statutory enactment and it has only developed through judicial decision of India Supreme Court. अब बात करें यहाँ पे कि यहाँ पे इस टाइप के डिक्लेरेशन ऑफ लॉज जो होते हैं वो बाइंड होते हैं ऑन ऑल कोर्ट्स थ्रू आउट इंडिया अंडर आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. And what were the earlier views of Supreme Court on same-sex marriage? So marriage is a fundamental right. That was in the case study Shafeen Jahan versus Ashokan KM in other 2018 में सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी. माय फ्रेंड, सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक्ट आज के 3 साल पहले भी हैं उसको एज ए रेफरेंस बाकी कोर्ट यूज़ करती हैं. जैसे हाई कोर्ट हो गया, आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, वो उसे यूज़ करती हैं एज एन रेफरेंस के लिए,
right? So while referring to Article 16th, that is for the Universal Declaration of Human Rights and पुत्तुस्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस इज अ इंटीग्रल ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये केस स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी केस स्टडी में सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि राइट टू मैरी जो है वो एक हमारा फंडामेंटल राइट्स है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। माय फ्रेंड्स, अगर आप आर्टिकल 16 क्लॉज 2 को देखें तो यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है देयर कैन नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस ऑफ एनी ऑफ देम। और ये वायलेशन में है कितने आर्टिकल्स को मैंने आपको इस स्लाइड्स में मैंने आपको बताई थी कि वायलेशन है आर्टिकल 14, 15, 19 और 21 का। So right to marry is intrinsic to the liberty which is the constitution guarantees as a fundamental right. Now इसमें आपको एक चीज़ समझनी होगी जिसमें बात हो रही है स्पेशल मैरिज एक्ट को अमेंड करने की। स्पेशल मैरिज एक्ट क्या होता है? जिसमें कि मैरिज इन इंडिया दैट कैन बी रजिस्टर्ड अंडर द रिस्पेक्टिव पर्सनल लॉज, हिंदू मैरिज एक्ट। जैसे आप देखो जो हमारे इंडिया में सिख कम्युनिटीज़ के लोग हैं, सिख के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट नहीं है। What the Constitution believes that कि any kind of matrimonial disputes that come under Hindu Marriage Act 1955, Muslim personal laws है 1937 में है, under the Special Marriage Act 1954. So it is the duty of the judiciary to ensure that the right of both the husband and wife are protected. Or Special Marriage Act 1954, that provision for civil marriage for couple of India and all Indian national in foreign countries irrespective of religion or faith followed by either party. और जब भी कोई पर्सन सोलमलाइज होता है मैरिज में अंडर दिस लॉ, द मैरिज इज नॉट गवर्न बाय पर्सनल लॉज बाय द स्पेशल मैरिज एक्ट। क्या क्या फीचर्स हैं इसमें? दो डिफरेंट रिलीजियस बैकग्राउंड टू कम टुगेदर टू बॉन्ड ऑफ मैरिज। अभी आपने स्वरा भास्कर की शादी हुई थी, वो हिंदू है, उनकी जो शादी हुई वो मुस्लिम है, तो उनकी शादी जो हुई थी स्पेशल मैरिज एक्ट में हुई थी, दैट इज 1954 के अकॉर्डिंग। So that lays down the procedure for both solemnization and registration of marriage where either of the husband or wife or both are not Hindus, Buddhist, Jain or Sikhs. So being a secular act, it plays a key role in liberating individuals from traditional requirement of marriage. Now हम बात करते हैं क्विक टिप्स के। क्विक टिप्स में माय फ्रेंड्स आज जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा MSP which is मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस बिफोर सोइंग सीजन 22 क्रॉप्स पे देते हैं एट प्रेजेंट। मेक श्योर इसमें आपका शुगर केन नहीं है। शुगर केन के लिए हम देते हैं FRP which is फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। दिस कॉल फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। भी क्या होता है माय फ्रेंड्स? देखो जो आपका FRP है, जो आपका MSP है, गवर्नमेंट बिफोर सोइंग सीजन से पहले जो हमारे फार्मर्स हैं उनसे ये चीज़ बताती है कि आपको हम इस क्रॉप्स को के लिए हम आपको 18 रुपीज़ पर क्विंटल देंगे या पर हेक्टेयर देंगे, तो आपको दे आर बाउंड टू डू दिस। तो इट मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, एक मिनिमम प्राइस होता है जो हम आपको देंगे ही देंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ उस टाइम में क्या वेदर कंडीशन है, उस टाइम में क्या मार्केट में उस चीज़ की प्राइस है। और उसके बाद फिर किसान जो होते हैं वो हमारे आते हैं यहाँ पे APMC मंडी में। अब ये APMC क्या होती है? APMC होती है माय फ्रेंड्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मार्केट कमेटी, जहाँ पे फार्मर्स यहाँ पहुँचती हैं और यहाँ पे जो होती है FCI की टीम होती है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को, वो इसे चेक करती हैं। सो व्हेन अ फार्मर्स ग्रोज अ क्रॉप ही इनक्योर कॉस्ट सम ऑफ इट एक्सप्लिसिट एंड सम इम्प्लिसिट और अनपेड। और ये डिटरमिन कैसे करते हैं MSP को? पहला होता है A2 जिसमें कवर होता है ऑल कैश एंड काइंड एक्सपेंसेस जो फार्मर्स के खर्च हुए सीड में, फर्टिलाइजर्स में, केमिकल्स में, हायर्ड लेबर में, फ्यूल में, इरीगेशन में। उसका आता है A2FL जिसमें कि आपका एक्चुअल कॉस्ट प्लस एन इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ अनपेड फैमिली लेबर। उसके बाद आता है आपका C2 जिसमें कि इंक्लूड होता है A2 प्लस FL दैट अलॉन्ग विथ रेवेन्यू फॉरगॉन ऑन ओन्ड लैंड एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स जिसमें इंटरेस्ट आता है। बिफोर 1947 से पहले अगर बात करें तो आप यहाँ पे इंडिया की जो एग्रीकल्चर थी दैट वाज डिवेस्टेड अंडर द ब्रिटिश रूल बिकॉज इस पे हावी टैक्सेस इम्पोज किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1957 में फूड ग्रेन इंक्वायरी कमेटी इस्टेब्लिश की टू एड्रेस द एग्रीकल्चरल अर्निंग इशूज़। 1964 जो एक टर्निंग पॉइंट था MSP के लिए, जहाँ पे फ्रूट ग्रेन प्राइस कमेटी, जहाँ पे अंडर LK झा टू पुश MSP रिजीम को उन्होंने एस्टैब्लिश किया। और 1967 में माय फ्रेंड्स यहाँ पे फर्स्ट MSP को अनाउंस किया गया। और आफ्टर 1967 के बाद जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है दैट इज एप्लीकेबल अक्रॉस इंडिया एंड द गवर्नमेंट to set up the Agriculture Prices Commission for fixing MSP for crops replaced by CACP in 1985. This is all the things. अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस ऑफ द डे। यहाँ पे आपका पहला है
ग्लोबल हंगर इंडेक्स। माय फ्रेंड्स, यहाँ पे इंडिया की रैंक अभी आई है 111। ये इंडिया की रैंक आपको याद रखनी पड़ेगी, इंडिया की क्या रैंक है। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑक्सफैम इंटरनेशनल एंड नन। अब बताओ वर्ल्ड हंगर इंडेक्स कौन रिलीज करता है? मैं आपको एक हिंट देता हूँ, इसमें 2 NGO हैं जो इसे रिलीज करती हैं, वर्ल्ड हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर है नन, इसमें से कोई भी रिलीज नहीं करता इस इंडेक्स को। सो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है आपका द एनुअल रिपोर्ट है, राइट, दैट मेजर्स द ट्रैक्स हंगर एट ग्लोबल रीजनल। और ये NGO जो है हमारे कंसर्न वर्ल्ड वाइड, आयरिश NGO है, एंड द जर्मन NGO है वर्ल्ड हंगर लाइफ। द GHI गोल इज टू ट्रिगर एक्शन टू रिड्यूस हंगर अराउंड द वर्ल्ड। एंड यहाँ पे अगर आप देखें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जो रिलीज करने वाली ये 2 NGO हैं, आयरिश NGO एंड जर्मन NGO, दैट इज कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर लाइफ। इंडिया की रैंक है 111 दिस ईयर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आपको सेम आर्टिकल हमने डिस्कस किया अबाउट सेम सेक्स मैरिज के ऊपर। 2 स्टेटमेंट है। यहाँ पे पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि इन इंडिया द लीगैलिटी ऑफ सेम सेक्स मैरिज इज नॉट एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज्ड एज अ फंडामेंटल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बट इज गवर्न्ड बाय स्टैट्यूटरी लॉ। 2018 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट डिक्रिमिनलाइज सेम सेक्स मैरिज। आपको फाइंड आउट करनी है कि इसमें से विच वन ऑफ द स्टेटमेंट इज द करेक्ट वन। मेक श्योर दैट यू हैव टू फाइंड इट आउट द डायरेक्टिव वर्ड, एंड द डायरेक्टिव वर्ड यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। तो आपको फाइंड आउट करनी है कौन सा करेक्ट है। माय फ्रेंड्स, ये दोनों ऑप्शन क्या है? करेक्ट है हमारे। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो लीगल स्टेटस जो है हमारा सेम सेक्स मैरिज का इंडिया में, वो लीगैलिटी ऑफ सेम सेक्स मैरिज नॉट एक्सप्रेसली रिकॉग्नाइज फंडामेंटल राइट्स। 2018 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने डिक्रिमिनलाइज किया था सेम सेक्स मैरिज को। पहले इसके व्यूज़ क्या थे? नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, दैट रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसजेंडर एज अ थर्ड जेंडर। KS पुत्तुस्वामी केस में यहाँ पे 2017 में राइट टू मैरी अ पर्सन वंस चॉइस, इसको आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फाइंड आउट किया था। शफीन जहान वर्सेस अशोकन KM में 2018 में, जहाँ पे लिबर्टी गारंटीड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ फंडामेंटल राइट्स। और 2018 में जो था हमारा नवजीत सिंह जोहार केस में, जिसमें कि डिक्रिमिनलाइज किया था होमोसेक्सुअलिटी को। तो ये केस स्टडी इज इंपॉर्टेंट स्पेशली फॉर द लॉ एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो। थर्ड, अभी आपने देखा नोबेल प्राइज अनाउंसमेंट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे नोबेल प्राइज को अवार्ड करने के लिए यहाँ पे हाउ आर नोबेल प्राइज अवार्डेड, ये 4 ऑप्शंस आप देखें। कमिटी ऑफ पॉलिटिशियंस, तो ऑब्वियस माय फ्रेंड्स ये गलत आंसर है। नाउ वी आर लेफ्ट विद B, C and D। अवार्ड एनुअली टू एनीवन हु नॉमिनेट देमसेल्व्स फॉर द प्राइज, नॉट एनीवन, इसे कमिटी डिसाइड कर दी यहाँ पे। C भी ऑप्शन नहीं है। नोबेल प्राइजेस आर अवार्डेड सोली बेस्ड ऑन पर्सन्स एज, दैट डज नॉट मेक एनी सेंस इफ यू लुक इट वेरी केयरफुली। बिल्कुल ये आपका जो स्टेटमेंट है ये अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये आपने कट कर दिया। नाउ वी आर लेफ्ट विद द ओनली ऑप्शन B which is the correct one। Nobel prizes are awarded to individuals and organizations for outstanding contribution in the fields of physics, chemistry, medicine, literature and peace के लिए देते हैं। और इसमें एक और अवार्ड है आपका जो 1960 के बाद ऐड किया गया, दैट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स को भी में भी हम देते हैं, इकोनॉमिक साइंसेस में भी हम देते हैं नोबेल प्राइजेस। सेम यहाँ पे आप देख सकते हो, स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन की हुई है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड। दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड केरला, ये बहुत बार न्यूज़ में भी थी अभी। कुणाल कह रहे हैं C ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है कुणाल आपका, ये C इज द करेक्ट वन। कर्नाटका इज द राइट आंसर, C इज द राइट आंसर यहाँ पे। और दांडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो आपका उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका अलॉन्ग विद अंशी नेशनल पार्क। और जो KTR है आपका, दैट इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है? दैट इज़ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, एंड इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अब बात करें यहाँ पे लास्ट क्वेश्चंस को, यहाँ पे पूछिए कि लॉज रिगार्डिंग एबॉर्शन इन इंडिया। So abortion was never criminalized under Indian Penal Code. At present, the law allows abortion during the first 20 weeks without any approval from a medical practitioner. In case involving a severe fetal anomaly after 24 weeks that mark a 3-person medical board
must confirm the diagnosis with the final decision resting with the judge. Above statement, how many above statements are correct one? So in short, अगर यहाँ देखिए option only statement third is correct one. Before the MPT, which is Medical Termination of Pregnancy Act of 1971, abortion were criminalized under Indian Penal Code. बाद में इसको चेंज किया गया 2021 में अमेंडमेंट्स हुए. द एक्ट अलाउज अबॉर्शन नंबर ऑफ circumstances must be based on the health and safety of the women. ये 20 weeks से हमने 24 weeks तक ऑथराइज किया by the 2 medical practitioner. So this is all about the session, dear students, and I hope that you enjoyed the session a lot. If you have any questions, please let me know in the comment section, and please share this video to your friends. And if you are new in this channel, please subscribe our channel and make sure कि जो आपके न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन होती है डेली होती है आपके मंडे टू फ्राइडे एट 11:30, और करंट अफेयर संवाद का सेशन होता है वो नाइट में होती है आपकी 8:30 पे. So stay tuned. Thank you so much Kunal for joining with us, and we'll meet you for the next YouTube analysis session of daily news analysis. Thank you so much for joining with us. Happy Dashera once again. Take care. We'll meet you in the next session. Thank you so much and happy Dashera.